I'll make you write down side by side. So please write down the important terms first. Chapter 13, Organism and Population. We have started with the chapter 13, Organism and Population. Sorry? Roop, you're not audible. रूप बच्चे आप क्या बोल रहे थे? Speak out again. Chapter 13, Organism and Population. We're going to start with this chapter. So write down the first definition, ecology. Study of interactions, function, and factors in the biosphere. Study of interactions, functions, study of, सबसे पहले आप लोग definition लिख रहे हो. You all are writing the definition for ecology. Ecology को अगर हम simple terms में बोलें तो interaction between living and non-living components. बट अगर आप इसकी टेक्निकल टर्म लिखोगे तो इसमें लिखोगे स्टडी ऑफ इंटरैक्शन फंक्शन एंड फैक्टर्स इन बायोस्फीयर. Study of ecology, study of interaction, function and factors in biosphere. Ecology or ecosystem almost same terms hai. Ecology is a branch of biology which deals with the interaction of living and non-living. दोबारा से सुनो, ology का मतलब होता है study. तो it is a study of interaction of living and non-living component. तो living component को हम बोलते हैं biotic और non-living को क्या बोलते हैं abiotic. तो interaction between biotic and abiotic components. और ecosystem ecology तो study है और उस इंटरैक्शन को नाम दिया गया इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में लिखो ऑल कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, all communities of plants and animals in an area all communities of plants and animals in an area together with their abiotic environment. All communities of plants and animals in an area together with their abiotic environment. अब इसमें आपने टर्म सुनी हुई है हाइबरनेशन, which is also known as winter sleep. हाइबरनेशन के बारे में लिखो. Spending winters in dormant condition. Spending winters in dormant condition. Hibernation is spending winters in dormant condition.
Takshika, Adesh, we are doing this chapter 13, organism and population. तो इसमें सबसे पहली टर्म आपने लिखी है ecology. Ecology is branch of biology which deals with interaction between biotic and abiotic community. और उस इंटरेक्शन को टर्म देते हैं इकोसिस्टम. तो इकोलॉजी की टर्म आपने क्या लिखी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, फंक्शन एंड फैक्टर्स इन बायोस्फीयर. स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, फंक्शन एंड फैक्टर्स इन बायोस्फीयर. और इकोसिस्टम में लिखा ऑल कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया. All communities of plants and animals in an area together with their abiotic environment. All communities of plants and animals in an area together with their abiotic environment. Hibernation में आपने लिखा spending winter in dormant condition. जिसको विंटर स्लीप भी बोलते हो. इसके इकोलॉजी की जो आपने सेकंड वाली वो बताई थी डेफिनेशन, वो बता दो. इकोलॉजी की इंटरेक्शन बिटवीन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. Ecology is a branch of biology which deals with the interaction between biotic and abiotic component. Hibernation में आपने लिखा winter sleep. Can anyone tell me what is the opposite for this hibernation? Summer sleep कौन सा होगा? It is estivation. EESTIVATION. Estivation is summer sleep. Spending the dry hot period in inactive state. Spending the dry hot period in an inactive state. Next देखो term homeostasis. Homeostasis. Homeostasis सभी को पता है. It is the steady state of an individual. It is the inherent capacity of an individual to maintain the steady state. हमारी बॉडी की का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इट इज ऑप्टिमम, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. अगर ज़्यादा ठंड में जाते हो तो हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है. और अगर ज़्यादा गर्मी में जाते हो स्वेटिंग होती है. तो टेम्परेचर रिमेन सेम. तो इसमें आप लिखो होम्योस्टेसिस में इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल inherent INHERIENT inherent capacity of individual to maintain its inherent capacity of individual to maintain its internal environment. बाहर जो मर्जी टेम्परेचर हो. Inherent capacity of individual to maintain its internal environment in spite of changes in external environment. Inherent capacity of individual to maintain its internal environment in spite of changes in external environment. नेक्स्ट लिखो हेडिंग एपीमेरल्स. इस चैप्टर में बहुत डिफरेंट टर्म्स आएंगी. EPHEMERALS एपीमेरल्स. एपीमेरल्स के बारे में लिखो द प्लांट्स विच इवेड ड्राई कंडीशन. द प्लांट्स विच इवेड का मतलब होता है एस्केप या अवॉइड.
The plants which evade dry conditions. नेक्स्ट टर्म लिखो आप, एक्टोथर्म। पहले सिर्फ टर्म्स लिख रहे हैं, फिर चैप्टर आई विल एक्सप्लेन। एक्टोथर्म, एक्टोथर्म में लिखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Can anyone tell me the name of any cold-blooded animal? Frog. Reptiles. Yes, reptiles. Snake. Reptiles. Yes, yes, snake है, frog है। बाहर जो मर्जी जो टेम्परेचर होगा अपने आप को चेंज करते रहेंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स whose body temperature tends to match with environmental temperature. मैम इसके ऊपर वाले के डिफरेंस बता दो। Ephemerals था plants which avoid या which evade dry condition. Ectotherm, cold-blooded animals whose body temperature tends to match with environment, external environment in which they live. Cold-blooded animals whose body temperature tend to match with the environmental temperature in which they live. Ectotherm. एक्टोथर्म के ऑपोजिट क्या हो जाएंगे हम लोग? एंडोथर्म्स। आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया था फ्रॉग वाला, एम्स में जो क्वेश्चन आया था कि फ्रॉग को एक पैन में उबलते पानी में, पैन में पानी रखा हो, उसमें फ्रॉग रखा है, तो फ्रॉग को पानी को उबालते रहे तो फ्रॉग जिंदा था। अब जब क्योंकि इट कैन चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर, तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो वो फ्रॉग जंप करेगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या आंसर था इसका? Should I repeat the question? Yes, ma'am. Okay, बच्चे question was कि पैन में the frogs they are ectotherm, cold-blooded animals, मतलब they can maintain their temperature, body temperature according, they can adjust the temperature according to the environment. तो जब आपने पानी पैन में रखा तो पानी को गर्म करना शुरू किया, उनका टेम्परेचर राइज हुआ हल्का सा, उन्होंने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया। ऐसे द टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, देयर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बिकॉज दे आर एक्टोथर्म। तो अब क्या होगा जब पानी बॉइलिंग पे आएगा, जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया तो क्या फ्रॉग जंप करेगा या उसकी डेथ हो जाएगी? दोनों में से एक। डेथ हो जाएगी। यस, यस, उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसने सारी अपनी एनर्जी जो है वो यूज कर ली इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर, इट्स बॉडी टेम्परेचर विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, और एनर्जी रही नहीं इन ऑर्डर टू जंप और टू लीप। तभी अगर ऐसा होगा तो आपने देखा होगा बाहर तो लोग पीते ही इनका सूप है, चाइनीज पीपल हैं तो वो लोग अगर सूप पी रहे हैं इस चीज का, तो वो ऑब्वियसली अगर फ्रॉग जिंदा रखेंगे तो वो जनरली वो जानवर को लाइव ही फेंकते हैं पानी के अंदर, तो वो अगर वो लाइव होगा तो वो पानी के अंदर से जंप, सूप में से जंप आउट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज जैसे ही उसने सोचा जंप करने का कि वो विथस्टैंड नहीं कर पा रहा टेम्परेचर, तो उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज उसकी एनर्जी सारी लूज हो चुकी है। ओके, तो एंडोथर्म में लिखो वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एक्टोथर्म थे कोल्ड ब्लडेड लाइक स्नेक्स एंड फ्रॉग, और एंडोथर्म क्या है हमारी तरह? वार्म ब्लडेड ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स who regulate their body temperature
cold-blooded animals, warm-blooded animals who regulate their body temperature by physiological means and maintain constant internal temperature. Harleen, beta, we have started with this new chapter, chapter 13. I've just asked you to write down few important terms. Please write down. Later, I'll ask someone to share. Harleen, just write down the terms. बेटे रमन हरलीन जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया लेटर, तो आप सिर्फ अभी टर्म्स नोट डाउन करोगे. Important terms from this chapter. Now write down next term, heliophytes. HELIO फाइट्स. फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. हीलियोज वैसे होता है हीलियोज जो सन को बोला जाता है, तो हीलियोफाइट्स क्या हो गए? सन लविंग प्लांट्स. मैम एंडोथर्म रिपीट कर दो। एंडोथर्म में है वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच कैन regulate their body temperature by physiological means and maintain constant internal temperature. अरलीन, जो ये चार टर्म्स लिखी हुई हैं स्क्रीन पे, एफीमेरल्स. एफीमेरल्स वो प्लांट होते हैं विच कैन इवेड और एस्केप और अवॉइड ड्राई कंडीशन. ओके रमन, हरलीन. एक्टोथर्म बता दिया आपने, देखा है कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड में आते हैं फ्रॉग्स और स्नेक. बाहर पानी ठंडा है तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, बाहर पानी गर्म है तो वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर गर्म कर लेते हैं. दिस इज हाउ दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. और इसी तरह एंडोथर्म्स हैं. एंडोथर्म्स होते हैं वार्म ब्लडेड, जैसे हम. वी मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. बाहर का टेम्परेचर जैसा मर्जी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. Whether it is cold outside or hot, our body temperature remains the same. Next आता है heliophytes. Plants of heliophytes वैसे sun loving plants को बोलते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में हम यूज करेंगे plants of saline environment, जो नमक वाले पानी में, खारे पानी में रहते हैं, सी में. Plants of saline environment which are adapted to grow in plants of saline environment. Saline means namak. Plants of saline environment which are adapted to grow in high concentration of salt. Plants of saline environment which are adapted to grow in high concentration of salt. मैम रिपीट करना एक Plants of saline environment, heliophytes, which are adapted to grow in high concentration of salt. Which I'll share the notes from Biotech. क्या मैंने Biotech की PDF सेंड की थी आप लोगों को ऑलरेडी? क्या Biotech की मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड की हुई है, प्रिंटेड नोट्स? Yes or no? Any idea? मैम प्रिंटेड वाली 11 चैप्टर की सेंड की है, और रिटर्न में मैम एक पीडीएफ है, उसमें शायद मिक्स है दोनों चैप्टर्स के. ओके, मतलब ये सिर्फ 11 चैप्टर आया हुआ है. मैं बट आई विल शेयर बट 11th 12th एंड दिस 13th आल्सो. ठीक है, पीडीएफ बाय इवनिंग. नेक्स्ट लिखो हेडिंग स्टीनोथर्मल. स्टीनोथर्मल्स वो होते हैं organisms which are restricted to narrow range of temperature. आप ये टर्म लिख रहे हो, organisms steenothermals, organism restricted to narrow range of temperature.
Organisms restricted to narrow range of temperature. Next eco heading phenology. PHENOLOGY. स्टीनोथर्मल का एग्जांपल क्या होगा? बच्चे हम पढ़ेंगे डिटेल में ये टॉपिक्स. यूरीथर्मल इसका ऑपोजिट है, स्टीनोथर्मल. अभी हम डिटेल में सी में लेवल में आपको मैं बताऊंगी अभी. ये चैप्टर में ये टर्म्स बस सिर्फ सुन लो, इसके साथ बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं. चैप्टर काफी डीप है ये. ओके, ओके मैम. नेक्स्ट लिखो phenology. It refers to timing of seasonal activities of plants. It refers to timings of seasonal activities of plants in relation to change in environmental condition. Timings of seasonal activities of plants in relation to change in environmental conditions. मैम जो आपने बायोटेक के आंसर दी थी ना वो खुल नहीं रही है ऐप में. आंसर की ओके, मैं बच्चे ग्रुप में बोल दूंगी, आपके लिए शेयर कर देंगे वो. ठीक है, लिख लिया बेटे. phenology refers to the timing of seasonal activities of plant in relation to change in environmental condition. Next definition लिखो. Community. आप टर्म लिख रहे हो कम्युनिटी. सब समझ आ जाएगा, बस इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को पहले लिखवाई जा रही हैं. ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम चैप्टर समझेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या टर्म्स है. कम्युनिटी में लिखो एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉपुलेशन. इट इज द एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. Community, it is the association of several populations of different species. Next definition है diapause. Diapause होता है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. मतलब थोड़ी देर के लिए स्टेट में चले जाना, सस्पेंडेड स्टेट, इनएक्टिव ग्रोथ. जैसे आपने देखा होगा डॉर्मेंट स्टेज में आ जाते हैं कई, जैसे एल्गी है, गर्मियों में ब्लूम करेगी लेकिन सर्दियों में गायब हो जाता है. पॉन्ड बिल्कुल साफ हो जाता है, वाइट हो जाता है, क्लीन हो जाता है. तो वो एल्गी कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है डायपॉज स्टेट में, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. नेक्स्ट हम लिखोगे बायोम. बायोम में डायपॉज लिख लिया सबने. नेक्स्ट लिखो बायोम. इट कंप्राइजेस ऑफ मेजर रीजनल ecological,
It comprises of major regional, ecological, community of plants and animals, ecological community of plants and animals expanding over large natural area. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखोगे आप माइक्रो क्लाइमेट. Microclimate में लिखो climatic condition that prevails at a local scale, climatic condition that prevails at a local scale or in the areas of limited size. Climatic condition that prevails at a local scale or in the areas of limited size. Areas of regional site. Limited size, limited. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो निच, NICHE. बड़ी कॉमन टर्म है और इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. निच के बारे में लिखो फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म. Functional role of organism. आप लोग निच लिख रहे हो फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल सिस्टम. Okay, so we are done with the terms. Now I'm going to start with the chapter. So ये नीचे के फिर से बता दो. niche लिखो बेटे functional role of organism in ecological system. Okay, ma'am. Okay, now I'm going to start with the chapter. Write down ecology का first chapter है ecology. आप लोग term लिख चुके हो interaction between living and non-living component. Study of interaction. Ecology आ गया तो study. Ecosystem होता है interaction. So ecology is the study of interaction between living and non-living component या biotic and abiotic component. This term was given by, सबसे पहले आप लिखोगे ecology term. इसको भी दिमाग में बिठा लो, ये बड़ा important question है. This was given by German zoologist. इसका नाम था Ernst, Ernest Haeckel. Haeckel. Ernst Haeckel. Ernest भी बोलते हैं कहीं. तो Ernst Haeckel या Ernest Haeckel in the year 1866. This ecology term was given by Ernest Haeckel in the year 1866. Ecology को 4 levels में डिवाइड किया गया. इट इज बेसिकली कंसर्न विद इंटरेक्शन एट 4 लेवल्स. और वो 4 लेवल्स कौन से थे? कैन एनीवन टेल मी लेवल्स? सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म.
Population, communities, and biomes. Very good. Organism, then population, then community, and lastly biome. These are the 4 levels. It is concerned with interaction at 4 levels. We'll proceed with the levels step by step. Write down levels of organization. सबसे पहला level है individual. इंडिविजुअल के साथ लिख लो डैश डाल के फर्स्ट लेवल इन इकोलॉजी. Then is population. It is the collection of individual of given species. Ma'am, can you repeat? Population, collection of individual of given species. Next is community. Levels of organization है तो सबसे पहले इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन फिर कम्युनिटी. कम्युनिटी में लिखो इंटरैक्टिंग ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज. कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या आएगी? इंटरैक्टिंग ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज. Interacting groups of population of various species. Ma'am, what did we write in individual? Individual, it is the first level. It is the first level of level in ecology. Yeah, level of organization. First level of organization. Then is आपने community लिख लिया. Interacting group of population of various species. Population में given species, single species है इसमें, different species. Next is ecosystem. Ecosystem तो आप लोगों को पता है interaction between biotic and abiotic community. Ecosystem क्या है? Interaction between, साथ साथ लर्न भी हो जानी चाहिए, interaction between biotic and abiotic community. Next is biome. Interaction between biotic and abiotic community. Next is biome. Biome बहुत सारी communities जो बहुत ज़्यादा जगह तक extended है उसको बोलोगे biome. लिखो a complex of communities. A complex of communities that extend over large geographical area.
complex of communities that extend over large geographical area. Last लिखोगे आप species. Species की definition लिखो. A group of organisms species क्या होता है? Group of organisms that can interbreed among themselves. Group of organisms that can interbreed among themselves and produce fertile offspring. Species क्या है? Group of organisms that can interbreed among themselves and produce fertile offspring. Group of individual that can interbreed among themselves to produce fertile offspring. सबसे smallest level of organization क्या है? Species. Can anyone tell me which is the largest level of organization? Kingdom. Kingdom. No. It is the biosphere. Biosphere. Okay. Level of organization. Species repeat कर दो. Species repeat कर रहे हो. It is a group of organism that can interbreed among themselves. Group of organisms that can interbreed among themselves and produce fertile offspring. Smallest level of organization है species. Largest level of organization है biosphere. ओके तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अब कहते हैं कि जो अब आपकी एनसीईआरटी में गिवन है डिफरेंट सीजन्स या डिफरेंट वेरिएशंस इन दी टेम्परेचर. तो वो क्यों है? बिकॉज आप लोगों को पता है अर्थ रोटेट्स अराउंड दी सन और थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इसीलिए वेरिएशंस, क्योंकि सन जहाँ पे जिसकी रे जो उसके अर्थ के ऊपर रेस पड़ेंगी वहाँ पे हॉट एरिया होगा, ये काफ़ी गर्म होगा, और ये आपस में भी अपने आप पे भी रोटेट कर रही है ऑन इट्स ओन एक्सेस. तो दिस सीजन कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन जहाँ पे ये रेस डायरेक्ट पड़ रही है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी. दिस लीड्स टू वेरिएशन इन दी टेम्परेचर एट वेरियस एरियाज. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स, तो राइट डाउन दी हेडिंग मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस. गिवन इन योर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो समझ आएगा, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं है. काफ़ी हौच पौच दिए हुए ये चैप्टर, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तब सिस्टम पता चलेगा. अदरवाइज ऐसे लगेगा कि हैफिजड अभी तो हम ह्यूमन बींग्स और इंडिविजुअल्स की बातें कर रहे थे, अभी ये टेम्परेचर कहाँ से आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर आगे लीड कर रहा है इंटरैक्शन. तो इसमें सबसे पहला टाइप था रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं फॉरेस्ट. इंडिया में अगर आप बात करो तो असम में, मेघालय में, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये, अगर हम बात करें, अमेज़न जो है रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, जहाँ बारिशें होती हैं, और ये फॉरेस्ट अपने आप को सस्टेन करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, इन्हीं की वजह से वो प्रेसिपिटेशन भी होती है, बारिश भी इसी वजह से होती है. और इंडिया में आपको एग्जाम्पल दे दिया, असम में, मेघालय में. नेक्स्ट टाइप इज deciduous. Deciduous forest. Again, they are thick forest. जैसे रिवर्स के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, अगर हम बात करें तो जो रिवर गंगा जो है उसके आसपास जो गंगेटिक प्लेन्स, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, रिवर के आसपास जो भी थिक फॉरेस्ट होंगे
तो ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलेंगे थिक डेसिडुअस फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज डेजर्ट. डेजर्ट्स में एग्जाम्पल आएगा, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो राजस्थान. डेंसिटी इज वेरी लो. नेक्स्ट आता है सी के आसपास, समुद्र के आसपास. ये तो रिवर्स के आसपास था, जो फ्रेश वाटर है उसके आसपास ये आएगा सी रिवर. तो सी के साथ, नॉट रिवर्स, सी के साथ आएगा सी कोस्टल एरियाज उनको बोला जाता है. कोस्टल एरिया में जैसे एग्जाम्पल आता है तमिलनाडु, केरला इन इंडिया. तो कोस्टल एरिया में जहाँ पे सारा साल टेम्परेचर जो है सेम रहेगा. अब इनकी वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स की वजह से एक टर्म आती है हैबिटेट. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स. स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स. Specific place or locality where organism lives. और इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? हैबिटेट के दो की कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है एबायोटिक, दूसरा कंपोनेंट है बायोटिक. तो पहले आप लिखोगे एबायोटिक. हैबिटेट के नीचे डेफिनेशन नेक्स्ट लिखो एबायोटिक, सॉरी. एबायोटिक में लिखो it includes all the physical components. एबायोटिक में क्या है? It include all the physical components such as soil, temperature, water, light. It includes all the physical components such as soil, temperature, water, light. मैम बायोटिक में एबायोटिक में लिख लिया आपने फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज सॉइल, टेम्परेचर, वाटर. बायोटिक में लिखोगे ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स. इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इस चैप्टर में काफी कुछ डिटेल में है. सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर. एबायोटिक कंपोनेंट में हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये बच्चे जहाँ हम बात करते हैं इकोलॉजी की, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप लोगों ने पढ़ना है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया इसमें आपका क्या बताया जा रहा है इस टॉपिक में. तो टेम्परेचर जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग और टाइम ऑफ द ईयर या फिर डे और नाइट के अकॉर्डिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. तो टेम्परेचर वेरीज एंड इट चेंजेस फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन. इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन में ये वेरी करता है, आप लोगों को पता है टेम्परेचर. तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रेंजेस फ्रॉम 0 in the polar region or maybe above 500. At some points it is above 500 degrees Celsius at high altitudes in desert condition during summer. So just imagine the range of variation. The temperature can range below 0. It is below 0. तो आप लोगों को पता है कनाडा में कई जगह ऐसे होता है टेम्परेचर इज -20, -30. इंग्लैंड में -40 भी चला जाता है. तो टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम बिलो 0 in polar regions to greater than 500 degrees Celsius at higher altitudes. Or even in deserts, it is very high temperature during summer.
तो जितने भी एनिमल्स हैं जो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड. ऑल द एनिमल्स लिविंग इन दीज कंडीशंस, दे आर कोल्ड ब्लडेड. और कोल्ड ब्लडेड जहां आपने लिखा है वहां एक और टर्म लिख लो, पोएकिलोथर्म्स. एक ही बात है. अभी इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे, बट इसके बारे में आप सुनो. कोल्ड ब्लडेड का दूसरा टर्म एक आपने लिखा अभी, पोएकिलोथर्म्स, which do not have constant body temperature. अब पोइकिलोथर्म्स जो ऑर्गेनिजम्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं, वो इनएक्टिव फेज में ज्यादा रहते हैं. दैट मीन्स दे शो हाइबरनेशन. That is winter sleep. And if they are in this hot region, they'll show the estivation. ये आप पढ़ चुके हो. कुछ ऐसे organisms हैं, I'm repeating, some organisms they undergo hibernation and some organisms undergo estivation. What do you mean by estivation, Sneh? Estivation का क्या मतलब है? Vidita, what do you mean by estivation? Summer sleep. हाँ, समर स्लीप. तो विंटर स्लीप या समर स्लीप में, और जो समर स्लीप में जाते हैं वो मैंने आपको बताया था, एल्गी या लोअर ऑर्गेनिजम्स, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रहते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, और कुछ रहते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. अभी एक क्वेश्चन पूछा था रूप ने, स्टीनोथर्मल. स्टीनोथर्मल दे हैव वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, यूरीथर्मल. यूरीथर्मल्स वो हैं which can tolerate in wide range of temperature. Stenothermals and they are restricted to narrow range of temperature. और कुछ हमारी तरह है जिनकी homeostasis, they can maintain their body temperature with the external environment. Internal environment monitor कर लेते हैं. Like us, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. जब बाहर गर्मी होती है इन समर वी स्वेट अ लॉट, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा. और जब बॉडी टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर लो होता है, वी ट्राई टू शिवर, बताते हैं वी टेंड टू शिवर. और शिवरिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा. मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. कुछ एनिमल्स हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, वो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते. इसके लिए आप एग्जांपल्स लिखो. एग्जांपल्स, क्यूलाडियो. क्यूलाडियो जिसको बोलते हैं भरतपुर सेंचुरी. क्यूलाडियो ईओ नेशनल पार्क, इसको बर्ड सेंचुरी बोला जाता है, बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी. क्यूलाडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, ब्रैकेट में लिख लो भरतपुर. होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. साइबेरिया से बर्ड्स उड़ के आती हैं. होस्ट thousands of migratory birds like Siberian crane, Siberian crane coming from Siberia. कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एवरी विंटर. वहाँ बर्फ पड़ जाती है, पेड़ों के ऊपर बर्फ आती है, तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, खाने के लिए कहीं नहीं है, पानी नहीं होता, तो वो माइग्रेट कर लेती हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर, बिकॉज दे कैन नॉट विथस्टैंड दैट लो टेम्परेचर.
हाइबरनेशन में लिखो एग्जाम्पल, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, सबको पता है। बियर्स, पोलर बियर्स जो है, बियर्स एंड फ्रॉग्स, हाइबरनेशन। फिशेस एंड लिजर्ड, एस्टिवेशन। हम हाइबरनेशन की बताना एग्जांपल्स। हाइबरनेशन, बियर एंड फ्रॉग, बियर्स, पोलर बियर्स, बियर्स एंड फ्रॉग्स। एस्टिवेशन में लिजर्ड, स्नेल्स, फिशेस। डायपॉज आपको लिखवाया था। मी जो साइबेरियन क्रेन है ये किसका एग्जांपल है? इसी का माइग्रेटरी बर्ड है। मुझे हम टेम्परेचर में पढ़ रहे हैं ना, तो टेम्परेचर में आप लोगों को बताया मैंने कि कुछ एनिमल्स होते हैं स्टीनोथर्मल, कुछ होते हैं यूरिथर्मल, कुछ शो करते हैं हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायपॉज। तो हम इनके ये टर्म्स हैं छोटी छोटी इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। जब आप पढ़ोगे ना टेम्परेचर फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन को, दैट इज टेम्परेचर। तो उसमें ये छोटी छोटी टर्म्स दी हुई हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे दी कि जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट होके आती हैं साइबेरिया से। एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन, इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर एवरी विंटर दे माइग्रेट टू दिस प्लेस। ठीक है। मैम तो ये यूरिथर्मल की एग्जांपल हो गई ना? हाँ, यूरिथर्मल, यस। नेक्स्ट लिखो आप डायपॉज। डायपॉज में बताया था पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। तो डायपॉज में एग्जाम्पल लिखो, जू प्लैंक्टॉन्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। और आपने देखा होगा मक्खी मच्छर सब बोलते हैं ये तो सर्दियों में तो होते ही नहीं, ये गर्मियों में कहाँ से इतने ज्यादा आ जाते हैं, अपने आप कहाँ से आ जाते हैं, वो डायपॉज करते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स, इंसेक्ट्स, डायपॉज की एग्जाम्पल है। मैम ये माइग्रेटरी बर्ड कैसे आती है, रास्ता देखी हुई है? मुझे ये ना बर्ड्स जो है ना ये फॉलो ट्रेल को फॉलो करते हैं, एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर से जैसे निकली हैं वहां से। तो ये बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे माइग्रेट करती हैं, जहाँ पे सूटेबल और अच्छी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे फिर अपना घर बना लेती हैं। फिर ये जब वापस जाएंगी तो बाकियों को अगले साल लेके आती हैं। दिस इज हाउ दे फॉलो। मतलब बर्ड्स में आपने देखा होगा दिन में जहाँ मर्जी घूमे, जहाँ मर्जी, लेकिन जैसे ही शाम होने वाली होती है अपने घर की तरफ पहुंच जाती है ना। तो ये इनका एक इनकी एक हैबिट है ये कि जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, दे विल कम बैक टू देयर नेटिव प्लेस। ओके। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। और अब आप मुझे एक बात बताओगे, जैसे मैंने बताया था आपको, कोई अभी हमने रिसेंटली एक एग्जाम्पल पढ़ी है, कोई ऐसा बैक्टीरिया विच कैन सरवाइव वेरी हाई टेम्परेचर, कोई ऐसा बैक्टीरिया आप बता सकते हो? एनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यस, एग्जाम्पल इज आर्कियोबैक्टीरिया। उसमें उसमें अगर आप मिथेनोजेंस। स्मिथेनोजेंस, यस, वो एसिडिक कंडीशन और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। लेकिन हाई टेम्परेचर पानी की बात कर रहे हो, इवन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स या वॉल्केनोज में, तो उसमें एग्जाम्पल आता है थायोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट लिखो थायोबैसिलस, THIOBACILLUS, थायोबैसिलस या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। जिसका टेम्परेचर रेंज 500 to 800 डिग्री सेल्सियस है। The plants growing in extreme colder regions, extreme colder regions, बर्फ पड़ रही है फिर भी पौधे हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ग्रो कर रहे हैं, लोगों ने घरों में रखे हुए, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे साइक्रोफाइट्स। PSYCHROPHYTES, साइक्रोफाइट्स। इसमें रूल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चे ये इकोलॉजी तो आप लोगों को अटेंड करनी पड़ेगी, मिस किया तो आप लोगों का लॉस होगा।
क्योंकि इकोलॉजी ऐसे समझ भी नहीं आएगी और एक एक लाइन पे क्वेश्चन है, एक एक लाइन पे। बिलीव मी, अगर इकोलॉजी मेरे साथ पढ़ लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, नीट के लिए भी अच्छा हो जाएगा आपका, सबसे मेजर टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस पे टाइम भी काफी लगाएंगे हम लोग और एफर्ट भी। तो साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? सो टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye. Thank you, ma'am. Okay.